Hello students, this is lecture 17 and today we are going to start unit 3. Alright. So lecture 17 is the starting of our unit 3. Okay. In this lecture we are going to discuss about the energy delay optimization. Okay. So in previous lecture we discussed about the energy and also delay. Okay, so for a VLSI design there are three parameters, right? Those who are very important as the purpose of designing. Okay, first one is the your area, second one is your delay, and the third one is your power consumption. Okay, so these are the three factors which play a very important role in the VLSI designing. Area means we are talking about the hardware used in your circuit, integrated circuit. Okay, so for suppose if you are using if you have designed an integrated circuit, okay, and in this integrated circuit without modeling, without technology, you have just used 1000 transistor. Okay, now in another circuit you apply some techniques to how to reduce the number of transistor, but the condition is output will be should be same. Okay, and at second integrated circuit you have used 800 transistor. Okay, so you have reduced 200 transistor, means you have reduced the area. Okay, when you plant 1000 transistor on a chip, and second when you plant 800 transistor on a integrated circuit. Okay, so obviously the area of the second one will be less. Okay, when you are decreasing the area, okay, when you decreasing the area or you are decreasing the number of counts, means you are ultimately reducing the cost. So this area directly proportional to your cost. Okay, cost area means when you are talking about the हार्डवेयर. ओके, ऑल्दो अगर आप साइज़ कॉम्पैक्ट करते जाओगे तो आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यू हैव यूज्ड, नंबर ऑफ हार्डवेयर्स यू आर यूज्ड. सो अगर हार्डवेयर कम यूज़ हो रहा होगा तो आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम होगी. अगर हार्डवेयर ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी. ओके, about the delay we have already discussed. Okay, why delay is important, and the third one is your power. Okay, in present scenario our demand is how to increase the life cycle of the battery or how to reduce the working time of your product. Okay, so obviously if a portable product you have and it is working on the battery, so this is our requirement to battery life should be high. Okay, so जो चार्जिंग है वो हमें बार बार ना करना पड़े. Okay, so that's why power or energy, okay, play a very important role in VLSI design. Okay, so whenever we talk about the as a VLSI design, we focus on these three parameters. Okay, we are working on it because right now we are working on
around 8 to 10 nanometers. Okay, the technology we are working on 8 to 10 nanometers. We have applied so many techniques to reduce the delay. Okay, now we are also working how to reduce the power consumption. Power consumption अगर कम होगा तो जो हमारी बैटरी की लाइफ है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी. ओके, सो ऐसा नहीं है कि इन तीनों फैक्टर्स में हम कोई भी फैक्टर पे एक पे रिड्यूस करते जाएं. दे आर कोरिलेटेड. Like if you talk about the energy delay optimization, that's why I have mentioned here optimization term. Okay, आपको एक बैलेंस करना है energy and delay में. Because when you talk about the reducing the energy, okay, energy basically what is this? If we talk about the energy is directly related with power. In last lecture we discussed about this formula 0 to t, that is pt dt. ओके, सो अगर यहाँ पे देखें क्या है, एनर्जी इज रिलेटेड विथ पावर. ओके, सो इफ अगर मैं एनर्जी या पावर कोई भी वर्ड यूज़ करूँ, सो डोंट बी कंफ्यूज बिकॉज बोथ आर कोरिलेटेड. ओके, सो अगर पावर कम कर रहे हैं मीन्स वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन हाउ टू रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन. ओके, जो एनर्जी डिसिपेशन हो रही है और एनर्जी हमारे ट्रांसफ़र हो रही है टू द कैपेसिटर, उसे हमें कैसे कैसे रिड्यूस करना है, उस पर वर्कआउट करना है. ओके, सो दिस इज़ द रिलेशन विथ एनर्जी एंड पावर. ओके, सो ऐसा नहीं है कि हम अपनी पावर को रिड्यूस करते जाएं, पावर कंजम्पशन को रिड्यूस करते जाएं. ओके, बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि व्हेन वी रिड्यूस द पावर, डिले जो होता है वो हमारा वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है. सो वी हैव टू फाइंड आउट ऑप्टिमाइजेशन बिटवीन एनर्जी एंड डिले, कि हम अपनी एनर्जी भी जो यूज़ हो रही है, कंजम्पशन हो रहा है, पावर कंजम्पशन हो रहा है, उसे रिड्यूस कर सकें और डिले भी उस वजह से कम रहे. ऐसा नहीं है कि आपने एक पैरामीटर को कम किया, दूसरा पैरामीटर बढ़ गया. सो वहाँ पे वी कैन नॉट से वी आर डूइंग ऑप्टिमाइजेशन. ओके, सो आवर मेन मोटिव वी हैव टू वर्क ऑन बोथ पैरामीटर्स. Okay, so further moving, here I mentioned a natural question is what is the best choice of VDD and VT. VDD your power supply you are giving in the circuit and VT is your threshold voltage. So generally as a designer ये practically एक big question होता है कि हमें अपनी power supply क्या रखनी है. Okay, and what will be the threshold voltage. So when we talk about the VDD means we are doing this power supply to the circuit. Okay, so हमारा मोटिव क्या होना चाहिए एज ए प्रैक्टिकली व्हाट वी वांट कि ये VDD मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए. लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट द माइक्रो कंट्रोलर, आप लोगों ने माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ा है, आर्डिनो भी पढ़ा होगा एंड MSP 430 भी. ओके, सो इन आर्डिनो व्हाट वी ऑपरेट ऑन द 5 वोल्ट, मीन्स जो हम सर्किट में पावर सप्लाई देते हैं वो 5 वोल्ट की दे देते हैं. ओके, बट इन MSP 430 यू हैव 2 ऑप्शन अवेलेबल ओवर. यू कैन वर्क ऑन 5 वोल्ट एंड यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन 3 वोल्ट. ओके, सो ऑब्वियसली जो 3 वोल्ट पे काम कर रहे हैं हम पावर सप्लाई, वो हमारे लिए बेटर रहेगा क्योंकि लो पावर रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर सर्किट, और यही हमारा मेन मोटिव है. So this is a question कि what is the best choice of VDD and VT. The answer of course depends on the objective. Why I am writing over here objective? Suppose you are designing 2 product. Okay. Now first product आपने जो डिज़ाइन किया उसमें आपसे कंडीशन दे रखी कि we want to operate this product on 3 volt. But there will be no condition on the delay. Okay, means you can reduce the power, but अगर delay ज़्यादा भी हो रहा है तो उससे हमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Means there is no importance of the delay.
एक तो एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये हो गया। सेकंड क्या है कि जो सेकंड प्रोडक्ट है उसमें हम क्या चाहते हैं कि हमारा मिनिमम जो पावर हो वो भी मिनिमम यूज़ हो या हम उसे रिड्यूस कर सकें, बट देयर शुड बी नो इफेक्ट ऑन डिले, कि डिले आपका इंक्रीज नहीं करना चाहिए। ओके, सो आंसर इज कि आप अगर ये ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हो दैट विल बी डिपेंड ऑन योर ऑब्जेक्टिव, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, easily if you want to reduce the power, okay, and you don't bother about your delay, तो आप उसे रिड्यूस कर सकते हो। ओके, बट प्रॉब्लम इज कि हमें स्पीड भी चाहिए अपने सर्किट में। सपोज वी वांट टू परफॉर्म अ ऑपरेशन, लैपटॉप में हम अपने डेस्कटॉप में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, सो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड, वो क्या है कि जैसे हमने इंस्ट्रक्शन दिया हमें तुरंत आउटपुट मिल जाए। सो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये भी है कि डिले शुड बी मिनिमम। ऐसा नहीं है कि आप पावर तो रिड्यूस करते गए बट डिले इंक्रीज होता गया। सो वी हैव टू ऑप्टिमाइज बिटवीन द एनर्जी एंड डिले। So second point, minimum power by itself is not interesting objective because it is achieved as the delay for a computation approaches infinity। कि ऐसा नहीं है आप पावर कम करते जा रहे हैं, बट पावर कम करते जाएंगे तो जो डिले है वो टुवर्ड्स टू इन्फिनिटी, मीन्स इन्फिनिटी इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज होता जाएगा, और दैट इज़ नॉट गुड फॉर एनी प्रोडक्ट। ओके, क्योंकि अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट को अपने मार्केट में लॉन्च करना है इन VLSI डोमेन, देन वी थिंक अबाउट दी ऑल 3 पैरामीटर्स, एरिया, पावर कंजम्पशन एंड डिले। थर्ड पॉइंट मेंशन हियर, द टाइम फॉर ए कंप्यूटेशन मस्ट बी फैक्टर्ड इनटू द एनालिसिस। ओके, जो कंप्यूटेशन टाइम है वो भी हमें एनालिसिस में रिकॉर्ड करना चाहिए। ओके, एंड एनालिसिस मीन्स कंप्यूटेशन मीन्स जो डिले कितना यूज़ हो रहा है उसको भी हमें जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो वी हैव टू थिंक अबाउट, ऐसा नहीं है कि डिले ज़्यादा हो जाए। बेटर मैट्रिक्स इंक्लूड मिनिमाइजिंग द एनर्जी डिले प्रोडक्ट एंड मिनिमाइजिंग एनर्जी अंडर अ डिले कांस्टेंट। सो दिस इज़ आवर प्रायोरिटी कि एनर्जी हमारी मिनिमाइज होनी चाहिए अंडर द डिले कांस्टेंट। तो हमें क्या करना है, डिले को भी हमें क्या करना है, कंसीडर करना है। ओके, सो वी हैव टू ऑप्टिमाइज एनर्जी एंड डिले बोथ। फर्दर मूविंग, अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर, Moore's law you know। Okay, so according to Moore's law the number of transistor is going to just double in 1.5 year to 2 years, or 18 months to 24 years, months, sorry not years, months। okay, so 1.5 से 2 साल में आपके जो भी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर एक चिप में है वो जस्ट डबल होते जा रहे हैं। ओके, सो वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल चिप। ओके, इंक्रीज करते जाएंगे, कोई इशू नहीं, बट अगर इफ वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, पावर कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ओके, सो इसलिए जब हम सर्किट अपना डिज़ाइन करते हैं, सो वी हैव टू अप्लाई सम टेक्निक्स दैट सर्किट शुड बी इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके, क्योंकि ट्रांजिस्टर इंक्रीज होंगे तो पावर कंजम्पशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। For this reason, digital systems are usually optimized to maximize throughput for a given energy. Okay, so suppose you have to operate on 5 volt. So हमारा मोटिव क्या होना चाहिए कि उस 5 वोल्ट में जो हम ऑपरेट कर रहे हो उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम हम यूटिलाइजेशन कर सकें। ओके, मीन्स थ्रूपुट शुड बी हाई। This is also equivalent to minimization of energy for a given throughput. We can say that minimization of energy for a given throughput. So both will not affect. Okay, suppose if we talk about the throughput
एंड दूसरी बात करते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ द एनर्जी. ओके, सो वी हैव टू बैलेंस both two factor. Okay. The last point, these optimization can be accomplished with the knowledge of the energy delay trade-off. Okay, so here we are using a word energy delay trade-off. Trade-off means you should have the knowledge how to optimize these two factor. Okay, आपको एनर्जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और आपको डिले कैलकुलेशन के बारे में भी होना चाहिए. सपोज यू हैव वन सर्किट. ओके, सो सर्किट में मैक्सिमम क्या एनर्जी यूज़ हो रही है, ठीक है, उसमें डिले कितना है, उस डिले को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और एनर्जी को भी हम कैसे, पावर कंजम्पशन को भी कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. तो इसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम वो दोनों में ट्रेड ऑफ कर पाएंगे. ओके, एंड किस किस लेवल पे हम कर सकते हैं ट्रेड ऑफ और ऑप्टिमाइजेशन. वी कैन डू एट सिस्टम आर्किटेक्चर लेवल, मीन्स व्हेन यू आर डिजाइनिंग द एल्गोरिदम. ओके, माइक्रो आर्किटेक्चर मीन्स व्हेन यू आर डिफाइनिंग द योर functional unit. ओके, आर्किटेक्चर ऑफ योर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, जो रजिस्टर है वो कैसे हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट दी माइक्रो प्रोसेसर, तो उस लेवल पे हम कर सकते हैं. ऑल्सो वी कैन डू एट द कॉम्बिनेशन लॉजिक एंड लैचेस, मीन्स वी कैन डू एट दी व्हेन वी आर डिज़ाइनिंग कॉम्बिनेशन लॉजिक एंड सीक्वेंशियल लॉजिक. सो उस टाइम पे भी हम अपना इन दोनों में ट्रेड ऑफ कर सकते हैं. सो रिमेंबर कि हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि एनर्जी भी हमें रिड्यूस करना है. ओके, ई एंड डी, डी इज योर डिले, सो इसको भी रिड्यूस करना है और डिले भी रिड्यूस करना है. बट ऐसा नहीं है कि इसको डिले कर हमने रिड्यूस कर दिया और ये हमारा डिले हाई हो गया. सो ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि दोनों को हमें ऑप्टिमाइज करना है. एनर्जी एफिशिएंसी इज बेस्ट अचीव इन द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सिस्टम एट आर्किटेक्चर लेवल. ओके, व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि जब हम एल्गोरिदम डिफाइन करते हैं, ओके, सो आर्किटेक्चर लेवल पे आपको पता होता है कि कौन सी जो यूनिट है वो हमें कहाँ पे लगानी है. ठीक है, सो एक लार्ज डायमेंशन में बात करें तो जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, अगर आप यूनिट पास रखोगे तो कनेक्टिंग वायर्स की वजह से जो डिले हो रहा है वो कम होगा. ठीक है, वी कैन अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द विद द फॉर्म ऑफ द कि कौन सा ऑप्शन आपको चूज़ करना है. सपोज यू हैव 4 यूनिट्स एंड एट ए टाइम 4 यूनिट एट ए टाइम आपका क्या हो रहा है, एक यूनिट काम कर रही है, 3 यूनिट कोई वर्क ऑपरेशन में नहीं है, वो ऑफ है. ओके, सो यू कैन डिज़ाइन अ लॉजिक ओवर देयर कि पावर सप्लाई केवल फर्स्ट यूनिट में जाए, बाकी में ना जाए. ओके, सो बेस्ट ऑप्शन क्या है, हम आर्किटेक्चर लेवल पे हम ऑप्टिमाइजेशन अपना कर सकते हैं. ओके, हाउएवर सिस्टम डिजाइनर आल्सो नीड टू रियलाइज द क्रूशियल इंपॉर्टेंस अंडरलाइंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिज़ाइन. In fact, system level decision rely on delay and energy estimate of these underlying circuits. Okay, so आप हर लेवल पे कर सकते हो. Okay, you can do the optimization or architecture level, micro architecture level, logic level, circuit level. Okay, but preferable, you can best option is we have to prefer at the system architecture level. Reason I already told you कि हमें क्या बेनिफिट होता है. ओके, सर्किट लेवल पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर. ओके, नॉट नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, you can rearrange the transistor so that the delay will be less. But if you want to reduce the number of transistor, ऑब्वियसली आपको किस पे जाना पड़ेगा, एल्गोरिदम पे. ओके, सो दीज आर दी सम टेक्निक्स टू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड डिले. सो व्हेन इफ यू आर गोइंग टू डिजाइन एनी सर्किट, यू हैव टू रिमेंबर
कि एनर्जी को रिड्यूस करते करते ये हमें देखना है कि हमारा डिले इंक्रीज तो नहीं हो रहा है. सो वी हैव टू बैलेंस between energy and delay. This is the optimization. So thank you students.